So hello everyone, welcome to my channel Net Education. I am Nidhi Vaish and today I am taking interview of Abhishek Chauhan and Mona Lisa Jena. दोनों ने यहाँ पे JRF किया है and first of all congratulations both of you. So पहले हम यहाँ पे start करेंगे छोटे से introduction से. Mona Lisa, you can going ahead. Yes, ma'am, it's audible. हाँ ओके. सो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो फिर हम स्टार्ट करते हैं. आपकी कैसे रही Okay, सक्सेस ma'am. जर्नी. ओके. Okay, ma'am. Ma'am, I am Monali Shajana from Odisha, Harichandanpur. And ma'am, I have prepared, I think this is my third step, third attempt, because I have done my MEd. Tried three times, but due to some lacking and absence of knowledge, I can't qualify. And also, I have to prepare for these kinds of jobs because for my need. So I think due to this, I can't qualify in the before two times. So my some problems I want to convey first, which I have made, and the mistakes I have made in the previous two times. So those are I never gave emphasis to the paper one. I've ओके. never given emphasis to paper one. हम्म. And secondly, I have only emphasized the units हम्म. in paper two, which I am in which I am strong, but हम्म. never completed all the 10 units. हम्म. Never. So this is my first and foremost mistake, I think, for which I am not qualified in the two times before. But this time, I have observed your every videos from the starting of the year. From the starting of the year, I have tried to reach you. I have observed the units. And also the logic is very difficult for me, हम्म. but by observing your video, and I have also made some notes from that logic parts, which will be very helpful for me. And secondly, in the paper 2, my strong part was research methodology, psychology, management. हम्म. Was my special paper in MEd. So ओके. these three units are so much strong for me, but other units I getting bored. So that I don't choose and prefer to prepare in that units. हम्म. But whenever I saw your video for the first time, and you have covered every part, every point, every concept very clearly, which I'm very much attracted, ma'am. And in the busy schedule, I don't get the time. I हम्म. never get the time because my schedule of the school was 9:30 to 4 p.m. And after 4 p.m., I have to check the copies of students. हम्म. I have to prepare for them for some NMMS, NTSC, like that of examination. I don't get the time. हम्म. But I think your videos have helped me very much. And also the 1000 questions in the near the exam, that helped me very much, ma'am. ओके. That 1000 questions gave me a very beautiful idea of the net standard. Also your mock test, I have not completed your mock test because due to this lack of time, but I हम्म. have completed only two mock tests. I think just before 2 days of the exam I have also messaged you. हम्म. But I I think those questions are very high to that of the net questions. ओके. सो But these कॉन्ग्रेचुलेशंस questions. मोनालिसा. कॉन्ग्रेचुलेशन मोनालिसा, बहुत अच्छी आपने बताया Okay, कि ma'am. कैसे कैसे जर्नी आपकी रही. और इनफैक्ट Yeah, अगर ma'am. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कई सारे पॉइंटर्स हाईलाइट करे रिलेटेड टू 1000 सीरीज एंड रिलेटेड टू रिवीजन सेशन जो हमारे थे, तो वो कितना Ma'am. हेल्पफुल रहे जैसे आपने बताया. तो आगे जाके अगर यही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो वो कितना हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको नया क्या हाँ लगा मैम. उसके अंदर. ओके. मैम मुझे नया लगा कि आपकी जो क्वेश्चंस की पैटर्न थी और क्वेश्चंस की जो स्टैंडर्ड थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि आगे भी जाकर अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर हम्म. 2 या 3 साल बाद भी वो क्वेश्चंस अगर चूज करे और प्रिपेयर करे, हम्म. मुझे लगता है वो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा नेट क्लियर करने के लिए. आई थिंक मैम. और ओके. सबसे बड़ी चीज आपको वेरी मच थैंकफुल टू यू कि बिकॉज वो जो एवरी कंसेप्ट का क्लैरिटी वो मैंने आज तक कोई वीडियो में नहीं देखा है कि हर यूनिट की हर पार्ट को छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, आप हर पार्ट को कवर करते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा.
वो ओके। मुझे ऐसा लगा कि बिजी शेड्यूल में मैं हर हर चीज को जो नेट में ढूंढ कर नहीं देख सकती थी। पर हुँ, आपकी जो वीडियोस है उससे देखने के बाद मुझे हर चीज का एक आइडिया मिल गया, जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ नेट क्लियर करने में। okay. Thank you so much, Mona Lisa, for sharing your experience. And next, we will move towards Abhishek Chauhan. तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं अपने बारे में। राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या परस्यू कर रहे हो अभी? सो माय नेम इज़ अभिषेक चौहान और मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ। हुँ, और करंटली वैसे मैं एम एजुकेशन कर रहा हूँ हुँ, और उसके मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं जो कि जस्ट कंप्लीट हो ही गया है। हुँ, और अगर मैं नेट की बात करूँ तो ये मैंने इसी साल डिसाइड किया कि मैं नेट देता हूँ, बिकॉज इससे पहले मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हुँ, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी इस वक्त, तो फिर मैंने फेबररी के अराउंड इसमें शुरू किया था तैयारी करना। बट फिर भी बहुत सारे बीच में अप्स एंड डाउन्स आए और बहुत सारे ब्रेक्स हुए, बिकॉज बहुत सारा काम था। हुँ, लाइक डिसर्टेशन का था, एग्जाम्स थे, असाइनमेंट्स थे, तो उस चक्कर में बहुत बड़ी मतलब मेरा कहता हूँ कि टाइम बहुत उथल पुथल हो गया। क्योंकि हुँ, अगर मैं बताऊं तो मैं फरवरी से पढ़ा, फिर मार्च में फिर से ब्रेक बिकॉज कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे, अप्रैल में थोड़ा सा फिर से पढ़ा, मई में फिर से। हुँ, तो मैंने सोचा कि इस बार तो मेरा नेट होने से रहा, तो मैं दिसंबर की तैयारी करता हूँ, बिकॉज उस वक्त हम लोग सोच रहे थे कि एग्जाम जून में होगा। बट हाँ, स्टिल वो फिर पोस्टपोन हुआ एंड वो अगस्त को गया फिर। बट स्टिल प्रॉब्लम मेरे को वहाँ दोबारा से खड़ी होगी, बिकॉज मेरे उसी डेट को मेरे एग्जाम थे फाइनल और वो मैं मिस नहीं कर सकता था। जी, सो अगेन फिर मैंने सोचा कि यार अब फिर से मेरे को दिसंबर के देना पड़ेगा। बट थैंकफुली जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद फिर से वो एग्जाम पोस्टपोन हुआ एंड वो नोटिफिकेशन आई थी कि सितंबर 20 to 30 के बीच में एग्जाम्स होंगे। हुँ, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सोचा कि नहीं यार, किस्मत मुझसे कह रही है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए और तुम्हारा हो जाएगा। तो वो एक गट फीलिंग अंदर से आ रही थी इन दैट टाइम। उस वक्त तक मैं नोट्स तो वैसे बना चुका था पेपर 2 के, बट स्टिल वो एग्ज़ाम देने लायक कंडीशन में तो मैं था नहीं कि हाँ मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँ। और पेपर 1 मेरा ऑलमोस्ट ब्लैंक था। बट हुँ, हाँ, पेपर 1 में मेरा जो मैथमेटिक्स है और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड है वो सारे क्लियर थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट स्टिल उस वक्त मैंने फिर पेपर 1 शुरू किया और वो मैंने 15 से अराउंड 20 डेज में मैंने वो कंप्लीट कर लिया। हुँ, बट हाँ, प्रैक्टिस की बाकी थी, बट वो बाद में करी प्रैक्टिस। और पेपर 2 के लिए उस वक्त फिर मैंने सोचा कि अपने नोट्स को कैसे सप्लीमेंट करूं, तो देन आई सॉ योर वीडियोस। तो मुझे वो जो आपने डिस्कशंस किए थे, वो रिवीजन जो थे, तो हुँ, वो बहुत हेल्पफुल थे। मैंने उसको सप्लीमेंट किया और उनसे मतलब मेरे नोट्स एकदम फुलफिल हो गए थे। एंड साथ ही जो पी वाई क्यूज़ की डिस्कशंस थे वो बहुत हेल्पफुल रहे, बिकॉज उसमें एक तरह से आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चंस की, हाँ जैसे आप बोल रहे थे बीच में पॉज लेके मैंने अपना बताया कि हाँ मैं सोचा कि हाँ मेरा ये आंसर है और वो सही था तो सही था। तो और साथ में जो गलत थे उसमें जो एक्सप्लेनेशंस थी वो भी काफ़ी हद तक मतलब हेल्पफुल रही थी। हुँ, तो इस तरह से जो मेरा प्रिपरेशन था उसको एक बूस्ट मिला फाइनल डेज में। हुँ, और इसी कारण मुझे लगता है कि शायद मेरा जीआरएफ हुआ, बिकॉज जो मेरी प्रिपरेशन थी उससे इतना तो मेरे को श्योर था कि यार नेट तो हो जाएगा, बट जीआरएफ का कहीं ना कहीं थोड़ा सा था कि, और ऊपर से इतना प्रिपरेशन भी नहीं था बिकॉज मैंने बीएड में भी और जो एम एजुकेशन में भी इतना कुछ खास मैंने तेरे इतना कुछ करा नहीं है उससे। हुँ, तो आई वुड से कि जो अभी 3-4 महीने की प्रिपरेशन थी उसी पे मैंने ऑलमोस्ट, पेपर 2 की बात करूँ तो स्क्रैच से शुरू करके तो फाइनली वो वहाँ तक पहुंचा। और जब एग्जाम था तो हुँ, उसे मैं देखे आया था, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ नेट तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। और फिर हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि एनटीए आंसर कीज वगैरह भी करती है वैसे देती है। तो बाद में मैंने देखा कि हाँ, फिर मैंने मार्क्स जोड़े तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि हाँ इस बार जेआरएफ हो जाएगा। एंड फाइनली although I've calculated around 224, but still I managed to get 228 marks. तो कांग्रेचुलेशंस अभिषेक। एंड ऑल्सो एक ये भी मैं Thank आपसे you. पूछना चाहती हूँ दोनों से, कि जैसे कि टाइम मैनेजमेंट करना वो बहुत ही बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग फैक्टर है। तो टाइम को कैसे मैनेज करें फॉर बोथ दी पेपर्स? बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि पूरा फोकस एक पेपर 2 के ऊपर दे देते हैं। पेपर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज वहाँ से हमारी वेटेज इंक्रीज होती है। तो हम उस कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे जो टाइम इस तरीके से लें कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को एक साथ डिवोट करके चले, कि पेपर 1 के अंदर भी हमें फुल फोकस करना है, पेपर 2 के अंदर भी। तो आप लोगों ने क्या टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई थी जो आपके लिए हेल्पफुल रही? क्योंकि आप वर्किंग भी हो मोनालिसा, जैसे कि, यस और मैम, चौहान यस मैम। आप भी वर्किंग हो, आप भी अपना कोर्स कर रहे हो, तो कैसे आपने मैनेज किया ये सारा? तो थोड़ा ये भी हमें आइडिया हो जाए ताकि आगे और स्टूडेंट्स को भी जानने को मिले कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है।
मैम मैं क्या की थी, जो पेपर 2 था वो सबसे पहले मेरा इम्पोर्टेंस पॉइंट था, क्योंकि मुझे कवर करना था, 10 यूनिट्स मुझे कवर करना था, और हर कंसेप्ट जो है वो मेरे दिमाग में होना चाहिए। सभी तो याद नहीं रहेगा, पर हर कंसेप्ट के ऊपर कुछ कुछ याद, मैंने कि कुछ मीनिंग या फिर कुछ कंसेप्ट वो मेरे दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए मैं साल की जो पहले जनवरी से वो मैंने शुरू की थी, और यूनिट को कवर करते चली। और जो एग्जाम था, एग्जाम जब डिक्लेयर हुआ, तब जो 1 या 2 महीने था वो उसमें पेपर 1 को फोकस कर रही थी, क्योंकि पेपर 1 में जो रीजनिंग और मैथ था वो मैं बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि एज ए साइंस स्टूडेंट, सो आई फील आई एम स्ट्रांग इन रीजनिंग एंड मैथ। सो मेरा हमेशा ये हुआ है कि रीजनिंग मैथ ये हमेशा अच्छा रहा है। थोड़ा सा इंग्लिश में मैं डॉल रही हूँ, और फिर जो है हायर एजुकेशन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो दिक्कत हो रही थी। और सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी मेरी लॉजिक के पार्ट। तो ये 3 चीजें मैं आपकी जो वीडियोस है उन्हें देखकर मैं कवर की थी, और नोट्स भी बनाई थी। और जो चीजें हैं वो फिलोसॉफिकल जो वर्ड्स थे वो मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, उसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे कैच करके गई थी, क्योंकि हर चीज मुझे याद नहीं रहा था। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये था पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, पहले तो पेपर 2 जो 10 यूनिट्स है उन्हें पहले हमें महीने के अंदर जो 5 या 6 महीने हमें टारगेट रखना है, उसमें कवर करना है। और उसके बाद पेपर 1 को अगर कोई बच्चा रीजनिंग या मैथ में स्ट्रांग है, तो उससे बस लॉजिक और फिलोसफी जो है, और जो है हायर एजुकेशन, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। रिसर्च सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा पेपर है जो पेपर 1 पेपर 2 बहुत में आ रहा है। तो उसका जो अगर एक बार हम कंसेप्ट पकड़ लेते हैं तो बहुत बहुत ही पेपर में काम आ जाएगा। तो सिर्फ रिसर्च पेपर, अगर कोई बच्चा रीजनिंग मैथ में स्ट्रांग है तो सिर्फ 3 चीज, रिसर्च, लॉजिक और जो है इंग्लिश, हायर एजुकेशन, ये 3 चीजों को सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर रीजनिंग और मैथ में स्ट्रांग नहीं है तो फिर बच्चों को एजुकेशन के पेपर 2 के साथ साथ मुझे लगता है पेपर 1 को भी कंटिन्यू करना चाहिए, अगर कोई रीजनिंग या मैथ में स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने इस तरह से अपने टाइम मैनेजमेंट कर रही थी। पहले पेपर 2 की यूनिट कवर कर रही थी, और 1 महीने में मैंने दिया था पेपर 1 को, 1 या 1.5 महीना, ऐसे ही मैंने अपने पेपर कंप्लीट की थी मैम। ओके, और अभिषेक आपने कैसे किया था? दोनों को साथ साथ लेके चला था, 10 10 यूनिट्स को एक साथ साथ, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग एप्टीट्यूड है हमारा वो पेपर 1 का, वो हम कहते हैं कि काफ़ी सिंपल है, मतलब ऐसे जनरल बेस्ड है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे यूनिट उठा ले पेपर 2 की जो थोड़ी डिफिकल्ट है, कुछ ऐसा भी आप स्ट्रेटेजी भी बनाते थे कि एक यूनिट इजी, एक यूनिट आपकी डिफिकल्ट, ताकि वो दोनों कवर हो जाए साथ साथ पैरेलली? कुछ ऐसा भी किया, या फिर कुछ और टेक्निक आपने यूज़ करी? मैम सबसे पहले तो मैंने जैसे दोनों पेपर्स में अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज थे उनको आइडेंटिफाई किया कि कौन से में मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो अगर पेपर 1 की बात करूं मैं, तो उसमें मेरा जैसे मैथ्स काफ़ी बढ़िया रहा मेरा, और रीजनिंग और ये सब भी ठीक था, हालांकि लॉजिकल रीजनिंग नई चीज़ थी तो वो ऑब्वियसली करनी थी। बट मैथमेटिक्स और ये डीआई हो गया, ये सब मेरा स्ट्रांग था हमेशा से। और पेपर 2 की बात करूँ तो उसमें भी जैसे कुछ एक टॉपिक्स थे जो ओवरलैप होते हैं, जैसे रिसर्च है या दूसरे टीचिंग एप्टीट्यूड हैं, तो वो सब को एक कंबाइंड तरीके से मैंने उसमें पढ़ा, जो जो इसमें ओवरलैप होते हैं। बाकी जो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज थे उनको पहले आइडेंटिफाई किया, उनके ऊपर काम किया, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा काम करने की जरूरत होती नहीं है, तो थोड़ा बहुत उनको ब्रश अप किया। उसके बाद जहाँ पे सीखने की जरूरत थी कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, तो वहाँ पर कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो उनको अच्छे से पढ़ा। और जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो इट शुड नॉट बी अ कंसर्न कि हाँ मेरे पास इतना, कि मेरे पास 1 महीना है 2 महीना है। अगर अगर डिसाइड किया कि हाँ एग्जाम करना है तो फिर वो मैटर नहीं करता। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, बिकॉज चाहे वो 5 घंटे दें 10 घंटे दें वट एवर। जिसमें अपनी बात करूँ, हाँ मैं कहूँगा कि हाँ इतना मैंने अच्छे से मैनेज नहीं किया टिल अगस्त, क्योंकि मैं श्योर ही नहीं था कि एग्जाम मैं देने वाला हूँ कि नहीं। और उसके बाद क्लैरिटी होगी कि हाँ एग्जाम अभी देना है, तो उसके बाद फिर मैंने जैसे पेपर 1 में को मेरा काफ़ी सिलेबस छूट चुका था, तो वो मैंने अच्छे से क्लियर किया अपना। उस वक्त मैंने पेपर 2 का काफ़ी कम कर दिया था, यानी कि एक दिन में मैं 90% पेपर 1 को दे रहा था एंड 10% टू पेपर 2, बिकॉज पेपर 2 ऑलरेडी कवर्ड था, उसमें जस्ट रिविजन करना था एंड प्रैक्टिस एंड ये सब था।
तो उस तरीके से मैं अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को मैंने पहले आइडेंटिफाई किया और ये देखा कि ठीक है टाइम कितना मेरे पास बचता है और उस टाइम को मैं किस तरह से बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकूंगी ताकि मेरा पेपर 1 और 2 दोनों कवर हो सके। ये नहीं कि किसी एक पेपर को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और दूसरे को छोड़ ही दिया, बिकॉज बहुत सारे लोग करते हैं कि अपना जो कोर्स सब्जेक्ट होता है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और पेपर 1 में इतना अच्छा नहीं करते। तो मैंने बहुत देखे हैं जिनके पेपर 2 में लाइक 150 नंबर तक भी हैं और पेपर 1 में शायद 50 भी स्कोर ना कर पाए और फिर उस चक्कर में वो कई बार उनको सिर्फ नेट ही मिलता है या कई बार नेट भी नहीं मिलता। तो दोनों को अगर इक्वली आप इंपॉर्टेंस देंगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके लिए वही है कि आप आइडेंटिफाई करिए अपने कोर एरियाज को और उसके अकॉर्डिंगली टाइम डिवोट करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे पेपर 1 के अंदर हमारी 10 यूनिट है, पेपर 2 के अंदर भी हमारी 10 यूनिट्स है, लेकिन अगर पेपर 1 के अंदर जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स के ये होता है कि मैथमेटिक रीजनिंग अच्छी नहीं होती या लॉजिकल रीजनिंग अच्छी नहीं होती, तो क्या स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं कि इन 2 यूनिट्स को छोड़ते हुए बाकी के 8 यूनिट्स के ऊपर फोकस कर लें? क्या ये स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं? क्या ये काम करती है अगर आपने किया हो किसी में इन नो दोनों मैम, में? ओके। नो नो, नो मैम, इट कैंट बी पॉसिबल। अगर हम देखें कि रीजनिंग और अब अगर हम रेशियो के बारे में बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग को अगर छोड़ दे तो नहीं होगा। अगर कोई बच्चा ऐसे वीक है वो तो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इतना भी वो डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा पर्सनल लगे, मैं 3 बार अटेम्प्ट ली हूँ जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना में भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा ही उसे प्रैक्टिस करते हैं मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई बच्चा बैंकिंग सेक्टर में अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो भी तो अगर तुम पहले पहले उन्हें भी डिफिकल्ट होती है ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर बाद में हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा अगर अपने वीक पॉइंट को सोच रहा है कि ये मेरी वीक पॉइंट है, ये मेरी स्ट्रांग पॉइंट है, तो स्ट्रांग पॉइंट को देखने के साथ साथ वीक पॉइंट को हमें ज्यादा एम्फोसिस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पेपर 1 में अगर हम 50 से 35 30 एबव ले आते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जेआरएफ हो जाएगा। 35 36 ऐसा अगर ले आए तो एक बच्चा तो हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जबकि वो रीजनिंग मैथ और जो लॉजिक है ये सबको अगर इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर रीजनिंग मैथ को छोड़ दे तो ऐसा नहीं हो सकता। आई थिंक 10 से 15 क्वेश्चंस तो आ जाता है ऐसे ही रीजनिंग और मैथ से। और आई इनफैक्ट थिंक। आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है वो काफ़ी स्कोरिंग है, तो उसमें आप अगर ये छोड़ दोगे तो 10 मार्क्स आपके ऐसे चले जाएंगे, तो फिर वहाँ से हाँ लॉस हो हाँ जाएगा, हाँ, तो आप वो पूरा ही है। छोड़ दोगे। अ, हाँ। वही मैम मैंने प्रॉब्लम की थी, वही मिस्टेक मैंने जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में भी की थी। मैं पेपर 1 को पूरी तरह से छोड़ दी थी। तो इसीलिए ही मेरा नेट भी क्वालिफाई नहीं हो रहा था। पर इस बार मैं पेपर 1 पेपर 2 को बहुत इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। और पेपर 1 जो मेरे स्ट्रांग थे वो मैंने थोड़ा कम दिया है और जो वीक था वो थोड़ा सा ज्यादा दिया है। पर इक्वल इंपॉर्टेंस मैंने दिया है हर पेपर को। वही था मेरा स्ट्रैटेजी। और अभिषेक, जैसे पेपर 2 के अंदर कौन सी यूनिट ऐसी है जिसपे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कंपैरेटिवली टू अदर्स? कोई ऐसी यूनिट जो आपको लगती है काफ़ी स्कोरिंग है, जिसको छोड़ना नहीं है, मतलब करके जाना है, हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं हो एक जाता आपके लिए? एक तो डेफिनेटली साइकोलॉजी है जी। जिसको छोड़ना बनता नहीं है। हम्म। और उसके अलावा मैंने देखा कि जैसे मैंने क्वेश्चंस एनालाइज करे पिछले 3-4 सालों के, जी। तो एक चीज़ मैंने एनालाइज करी कि जो क्वेश्चंस हैं वो पहले ज़्यादा फैक्चुअल आते थे और धीरे धीरे अभी कंसेप्ट की तरफ ज़्यादा जाने लगे हैं। जी। तो वो यस। चीज़ भी मेरे को एक थोड़ा हेल्प करी कि क्योंकि मैं फैक्ट्स याद करने में इतना अच्छा हूँ नहीं, तो मैंने कंसेप्ट की क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस किया। तो वही मैं बोलना भी चाहूँगा कि अगर आप कोई भी यूनिट देख लो 1 to 10 में, अगर आप उसके कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस रखते हो तो आपके क्वेश्चन सही होने में ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज वो फिर उस नॉलेज को आप एक लॉजिक के तरीके से भी यूज़ कर पाओगे। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आते हैं हर बार, चाहे हम कितना भी पढ़कर जाएं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हमें बिल्कुल आते नहीं होंगे। थोड़ा सा प्रायर नॉलेज होगा तो उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा लॉजिकल गेसिंग कर पाए, इंटेलिजेंट उसमें गेस वर्क कर पाए, एलिमिनेशन कर पाए, उसमें वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बाकी यूनिट्स का एज सच आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी यूनिट है जिसको अब हमें कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या कोई बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करना चाहिए। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम इम्पोर्टेंस को लेवल करें कि हाँ ये नंबर 1 पे इम्पोर्टेंट है, 2 पे, तो उस तरह से ठीक है। बट आई थिंक ऑल एंड ओवर एंड ऑल
एक ब्रॉड आइडिया सभी यूनिट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली कंसेप्ट की क्लैरिटी होना, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है। Yes, ma'am, that's definite. हाँ। और एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो आप नोट्स बनाते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैम आप नोट्स मुझे एज इट इज़ ही प्रोवाइड कर दो, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ पिक्चराइजेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी नोट्स को लेते हैं कि मतलब आप यही मुझे एज इट इज़ मुझे सेंड कर दो, मैं इसमें से पढ़ लूँगा। तो वो कितना रियलिस्टिक है कि नोट्स अगर कोई टीचर प्रोवाइड कर रहा है या नोट्स वो खुद बना रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, तो उसमें उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करना चाहिए कि नोट्स आप एज इट इज़ उठा के ले लो, या फिर अपने खुद के भी अपने पर्सनल नोट्स अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स के बेसिस पे बनाने चाहिए? आपने जैसे नोट्स बनाए वो कैसे बनाए? क्या आपने देखा, क्या ऐसे उठा के लिख दिया, या फिर आपने खुद थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बनाया? तो ये भी काफ़ी डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि नोट्स बनाने भी कैसे, क्योंकि ये भी नहीं आता। क्योंकि हम क्या करते हैं कि सारी लाइन लिखते हैं स्टेटमेंट वाइज, लेकिन उसको कैसे ग्राफिकली तरीके से रिप्रेजेंट करना है या कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, जैसे कि हम बनाया करते थे अपनी क्लास में, तो कितना इफेक्टिव रहता है स्टूडेंट्स के लिए आगे उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट करने के लिए? मैम मैम दो एक्चुअली तरीके। हाँ जी, ठीक हाँ है, ठीक। ओके, वन बाय हाँ वन हाँ, करके बोलिए। बोल। ओके। ओके। हाँ हाँ। हाँ मैम, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ऐसा बोला गया है कि कंस्ट्रक्टिव मेथड इज ऑलवेज बेटर देन रोट मेमोराइजेशन। सो वट एवर ए टीचर टीचेस, वी हैव टू इंटरप्रेट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स को बनाना चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई एक एग्जाम्पल दे रहे हो तो हमारे चारों ओर भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे उस कंसेप्ट के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कंसेप्ट का अपना एक तरीका होना चाहिए कि हम ऐसे बनाएं जो अगर बाद में हम कभी भी देखें उसे, तो हमें उस एक आइडिया आ जाए कि नहीं, ये कंसेप्ट रही है। अगर मैं आपकी जो नोट्स है उसे डायरेक्ट अपने जो कॉपी में अगर रख लेती हूँ, तो प्रॉब्लम ये होता है कि बाद में हम भूल जाते हैं कि आखिर ये कभी एजुकेशन की कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो डुअलिस्टिक मीनिंग होता है, या फिर थोड़ी सी एम्बिगुअस हमें महसूस होता है। पर अगर मैं अपनी कंसेप्ट यूज से अगर उसे लिख लेती हूँ एग्जाम्पल की तरह, और एग्जाम्पल लेके भी उसे लिख लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेटर होगा नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, हाँ ये पॉइंट जी मुझे मैम। गया। अभिषेक आप कुछ कह रहे थे? मेरे हिसाब से जैसे जो नोट मेकिंग होती है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि जो लर्नर है उसको किस तरह से पढ़ना पसंद है। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे अगर हम बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें वो अंडरलाइन करते हैं और उसी को फिर वो बाद में रिवाइज करते हैं, तो वो उनके लिए अगर वो जम रहा है तो इट्स फाइन। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो जैसे बुक से पढ़ा और उन्होंने शॉर्ट नोट्स बना दिए एंड उससे फिर वो पढ़ते हैं, तो वो कम्प्लीटली मुझे लगता है पर्सनल चीज़ है। बट हाँ, अगर बट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई कोई जैसे पीडीएफ है या कुछ भी है वहां से पूरा लाइन टू लाइन उसमें लिख दिया, बिकॉज वो आप फिर से एक और पीडीएफ बना रहे हो, एक और नोट उसको बना रहे हो, उसको नोट्स नहीं बोलेंगे। तो दूसरी चीज ये है कि अगर कोई ऐसे पीडीएफ मांगता है और बोलता है कि उससे ही मैंने करना है, तो वैसे तो वो एक कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज आपको बहुत सारा उसमें सप्लीमेंट करने की जरूरत भी पड़ती है। बट अगर कोई पीडीएफ यूज करना चाहता है तो पीडीएफ यूज करे, और उसमें चाहे वो प्रिंट ले ले या कुछ भी है, उसके साथ में अगर एक्स्ट्रा नॉलेज जो मिलती है उसको, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अगर आप हाईलाइट कर लेते हैं तो वो भी एक अच्छा नोट बन जाता है। बट हाँ, उसके लिए वही मैं अगेन कहूंगा कि हाँ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छी आपने बताई बात। बस एक और, कि जो हम लास्ट 15 दिन है वो किस में डिवोट करें, पढ़ाई करने में या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या कैसे रिवीजन करें स्मार्टली, और कैसे रिवाइज करें अपने कंसेप्ट को कि कम से कम वो आपके टिप्स पे हो जाए कंसेप्ट, ऐसे कैसे हमें लास्ट 15 दिन ऐसे बनाने चाहिए, 15 डेज कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं? मैम मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट जो 15 दिन है, उन तक हमारा जो पढ़ाई है, खुद की पढ़ाई है, वो खत्म हो जाना चाहिए। और लास्ट 15 दिन में हम क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि PYQs, प्रोबेबल क्वेश्चंस, वो प्रिपेयर करेंगे। और फिर जो हम नोट्स बनाते हैं, तो थ्रू आउट द मंथ्स या 5 मंथ्स की 6 मंथ के दौरान हम जो नोट्स बनाए हैं जो यूनिट्स के, उन्हें थोड़ा सा रिवाइज करें, दिमाग में रखें। हर चीज तो दिमाग में नहीं रहता है ना, जैसे कि एनसीटी
कब बना है, उनका विजन क्या है, एनसीईआरटी का विजन क्या है, सभी का विजन हमें याद नहीं रहता, वो हमें अगर बार बार पढ़ेंगे तब भी याद रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 15 days ओनली रिवीजन टू बी गेट more importance, and also along with more time should be focused on PYQ and probable questions of that year, so that it will be more helpful for getting JRF. गुड। Yes, ma'am. एंड अभिषेक, आपके अकॉर्डिंग 15 दिन कैसे हम लास्ट में कैसे रखें, कि कैसे हम स्ट्रैटेजी बनाएं अपनी, कि मास्टरी हो जाए अपने कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि मेन हमारा यही मोटिव होता है कि हमने पढ़ तो लिया इतना सारा, लेकिन उसको लगाना कैसे है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर कैसे करना है। अगर हम कई तरीके की टेक्निक्स यूज़ करें या फिर एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या असर्शन रीज़न भी हम यूज़ करें, तो कैसे कनेक्टिंग फैक्टर, कैसे रीजनिंग करना उसके अंदर, तो एक साथ हम काफ़ी चीज़ें कैसे प्रोसेस कर पाए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कैसे दे पाए, तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो 15 दिन कैसे आपके लिए आप यूटिलाइज करोगे, अगर किसी को बताना चाहो तो, कि उसे कैसे यूटिलाइज करना चाहिए अपने 15 दिन लास्ट के। सबसे पहले तो लास्ट के जो 15 दिन होंगे वो किसी भी स्टूडेंट को जब यूटिलाइज करने हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है कि मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। और उस वक्त पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, बिकॉज नॉलेज एक हद तक ठीक है वो रहता है, बट अगर आप सोचो कि हाँ आप सारे क्वेश्चंस नॉलेज के बेस पर ही आप सॉल्व करोगे तो ऐसा होने नहीं वाला। हाँ। तो नॉलेज की एप्लीकेशन किस तरह से करनी है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि आप जो PYQs हैं उनको एनालाइज करें कि जो NTA बनाती है जैसे PYQ वो शायद कोई और बना नहीं पाएगा उस लेवल के। तो उस तरह से तो उन्हें एनालाइज करें कि PYQs कैसे आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, जो चेंजेस हैं उनको एनालाइज करो और उस हिसाब से जैसे एलिमिनेशन लगाइए तो वो लगते हैं, बस थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगाने की बात है। एंड जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये इन चीज़ों पर मैंने काफ़ी फोकस किया। और एक और एस्पेक्ट है कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। तो आई थिंक ये तो कम्प्लीटली पर्सनल ओपिनियन है कि उनको क्या चीज़ सूट करती है। बट जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं शायद एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ और अच्छे से सोता हूँ 10 घंटे। तो कोई दिक्कत नहीं, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन ज़्यादा एंग्जाइटी ना हो। एंड इवन जब आप एग्ज़ाम देने जा भी रहे हो तो उस वक्त भी थोड़ा सा नर्वस होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो और बहुत ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं हो जाना कि हाँ सब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल जॉली। तो एग्ज़ाम में जाएं और काम रहें। जो पेपर देखते हैं तो कई बार क्वेश्चंस, पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि लगता है कि यार ये तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो उस वक्त थोड़ा काम रहें और ये पहला क्वेश्चन नहीं हुआ तो दूसरा ठीक हो जाएगा, तो आराम से एग्ज़ाम को करें। तो आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी पहले से बना लेनी चाहिए स्टूडेंट को कि हाँ मैंने कैसे लास्ट के 15 दिन स्पेंड करने हैं, और स्पेशली कि आंसर्स को किस तरह से मैंने फाइंड आउट करना है वो आना चाहिए, बिकॉज कम्प्लीटली एज आई टोल्ड कि नॉलेज के बेस पर एग्जाम क्लियर करना इज नॉट पॉसिबल। ओके। बाकी लास्ट कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आपके तरफ से, कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका मेरे साथ लर्निंग का, और आगे कैसे लोगों को आप मोटिवेट करना चाहते हो, कोई ऐसा लास्ट में कुछ ऐसा रिमार्क कि आप सबको ऐसा बूस्ट अप कर पाओ कि उन्हें, कि उनको भी JRF के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मैम मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जो एग्जाम हॉल में मुझे एक जूनियर मिला था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कितने बार अटेम्प्ट किए हो, तो मैंने बोला कि ये मेरे तीसरी बार है। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर लेते हो, जो मैं उन्हें भी पता है कि मैं जिस सेक्टर में जॉब कर रही हूँ उन सेक्टर बहुत ही बिजी शेड्यूल में, बिजी और हेक्टिक शेड्यूल है। तो वो मुझे ऐसे पूछा, तो मैंने आपका जो चैनल है वो उन्हें सजेस्ट किया और उन्होंने लिख के भी ले ली। तो मैंने कहा कि अगर तुम इस साल, अगर इस साल भी नहीं, अभी से अगर उनके चैनल के हर यूनिट वाइज अगर तुम देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्वालिफाई कर लोगे। तो मैंने ऐसा उन्हें भी सजेस्ट किया है। तो जिन लोगों भी मुझसे पूछा कि तुम कैसे ऐसे कर सकते हो कि ऐसे 7 दिन 8 दिन में भी बिजी हेक्टिक शेड्यूल में कैसे कर लिए तुमने, तो मैंने कहा कि इट इज ओनली ड्यू टू मैम, बिकॉज आई हैव एवरी टाइम प्रिपेयर्ड, आई हैव एवरी टाइम रीड द यूनिट्स, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आई हैव टू जस्ट पिक अप द की पॉइंट्स। जैसे कि फिलोसफी में होता है कि एसेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, एवरीथिंग जो है ना वो उनके कंसेप्ट थोड़ा सा सेम रहता है, जैसे कि प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रियलिज्म, पर हमें उनके जो की कंसेप्ट है उन्हें पकड़ना है। वो मुझे
हमेशा ही कंफ्यूज रहता था। पर आपकी जो वीडियो मैंने देखा है तो उनसे मुझे बहुत सारे आइडिया मिली कि मैंने एक चीज दूसरी चीज से कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम ऐसे याद रखें जैसे कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो सिमिलर टाइप्स के, वो थोड़ा सा मुझे बहुत बहुत फायदेमंद हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो जो है अगर वो थोरोली देखेगा और थोरोली अगर कीनली ऑब्जर्व करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। तो मैंने भी 3-4 ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स जूनियर्स उन्हें भी सजेस्ट किया है आपकी चैनल के बारे में कि ऐसे आप देखो, अगर आपको अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगे यू कैन कंटिन्यू। मैंने ऐसे भी सजेस्ट किया है उन लोग को, क्योंकि मुझे पर्सनली जो हर यूनिट को पकड़ना, हर कंसेप्ट को पकड़ना वो मुझे अच्छा लगा। और वैसे तो अगर बात करें, खुद को भी बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, पर आपकी जो चैनल से और यूनिट से जो कवरिंग एरियाज है वो दैट इज माइंड ब्लोइंग मैम, एंड ऑल्सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू Okay, मैम। thank you so much, Mona Lisa, for sharing your experience. And last concluding remark from Abhishek also. मैम जैसे मोटिवेशन की बात कर रहे थे आप लोग, तो आई थिंक मोटिवेशन तो स्टूडेंट को इंट्रिंसिक ही होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है तो वो करेगा। हाँ, तो फैक्ट है। बाकी हम तो ऐसे कोई ऐसा दे नहीं सकते, बट स्टिल अगर जिसको इंटरेस्ट है वो करे। बाकी हाँ एक बात जरूर बोलूंगा कि हाँ जो लोग सोचते हैं कि ठीक है एग्जाम क्लियर करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आई थिंक यूट्यूब में अभी जैसे आपका चैनल है तो आई थिंक उसमें बहुत बढ़िया रिसोर्सेज हैं कि आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो बिना कोई सच कोई ज़्यादा मनी स्पेंड करे। फ्री में भी लोग जो है आप कर सकते हो एग्जाम क्लियर। आप में एक विल पावर होनी चाहिए और आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए। Hmm. Okay. So thank you so much, Mona Lisa, and thank you so much, Abhishek, for sharing your थैंक यू। experience. And ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपनी लाइफ में जितनी सक्सेस है वो पाते जाओ. And thank you so much for joining today's session. और you are the थैंक यू motivating मैम। factor for all of the other aspirants जो यहाँ पे प्रिपेयर करे हैं JRF के लिए. So thank you so much. फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. Till then, stay blessed, enjoy learning, and stay safe. Thank you. Thank you for थैंक sharing यू your मैम, experience. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। Thank you. थैंक यू।